Hey, what's up, guys? This is Jaleel, this is Zaid, and Asad, and we are bringing you football. Joby. Joby? Yeah, Joby. We're gonna start with transfer news, football transfer news, and we'll start with Man United. Please, is there any news? Well, the biggest news is Sven-Göran Eriksson commenting that Zlatan Ibrahimovic is the new Eric Cantona. But Zlatan himself is more inclined towards being the god of Manchester United, whereas Eric Cantona was the king of Man United. So let's see who ends up into the god and who turns into the prince. Yeah. Then we move on to Or the Joker. hmm? Or the Joker. Yeah. There's the transfer in news that is Payet. What Well, would you say? I don't understand this interest in Payet because Payet himself has stated that he's not going to move. West Ham have said they're not selling Payet. Then why go after someone when you're already spending so much money on other people? I think यही point है. Point ये है कि go after people who are immovable right now. That's trying to actually impose your authority on the league as well. कि they are a team or a club that can do anything. Poach कर जो सकते हैं. नहीं जो लोग सोचते भी नहीं होंगे transferable हो वो transfer कर लेते हैं. सही. Maybe Payet is not that far off मेरे ख्याल से. But the problem with this is that considering the past few transfer windows, Man United has fallen flat on their face. हाँ तो अब तो नहीं कह रहे ना Pogba you gonna sign Pogba hopefully in this century and you got Abramovich in you got Mkhitaryan in so I don't think it's a far-fetched thing अगर Mkhitaryan को आप जो है ये देख लेंगे अगर वाइड राइट पे खिलाते हैं या फिर I think you can find space for Payet. Yes, I would love Payet to be in Man United, but let's see what happens. थोड़ी सी आउट्स का भी न्यूज़ है कि बैस्टन श्वाइनस्टाइगर और यंग प्लेयर्स को जो है कर रहे हैं. पिछले सीजन उन्होंने खेला भी है मगर आई डोंट थिंक ही फील्स दे आर अप टू द मार्क. अगर आप लोग देखें सब देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड मourinho का he doesn't prefer to promote youth and it's showing right now that is why there is so much news and rumors about youth moving out but Schweinsteiger I would personally think he would have suited Mourinho's style because he's experienced, he's won it all, he has that class, he has that quality. A rotation with Carrick would have done him good, would have done United good. And about the youngsters, it's not all of them are being sold, a lot of them are being loaned out. Like there are players like James Wilson and Andres Pereira, Cameron Watkins-Jackson, Fawcett Mensah, they're all being loaned out. And only a few of them are being sold. हाँ वो भी बाय आउट क्लाउज करेंगे अगर क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट अच्छे हुए तो. They don't want a repeat of Pogba either. हाँ सही है. और पॉग्बा की तो हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करते क्योंकि वो इतना ज़्यादा Yeah, we'll bring that news to you when the deal is done. We will bring all the whole timeline, inshallah. So when it is done, please tune in. तो अब इनके राइवल्स के पास चलते हैं मतलब लिवरपूल तो मतलब थे मतलब अब बेशक नहीं हो. तो उनकी सबसे बड़ी न्यूज़ क्या होगी लिवरपूल की अभी? सबसे बड़ी न्यूज़ तो सेटबैक है अनफॉर्चुनेटली लिवरपूल के लिए क्योंकि प्री सीजन में ही जो उन्होंने कैरियस जो लिवरपूल ने नया कीपर लिया था वो होपफुली would have turned out to be number 1 for them has broken his hand so he's out for 2 months or maybe 10 weeks as well. आर्सेनल बहुत खुश होंगे. Because obviously first game of the season is a very tough one for Liverpool and Arsenal at the same time. They face each other. Let's see. Simon Mignolet का हमेशा start of the season बड़ा अच्छा रहा. Later on, maybe after 10 games, he stumbles a lot. So let's see. I think इस बार Mignolet पे ज़्यादा pressure होगा. Let's see how he handles the pressure because इस बार जो keeper लिया है वो first team keeper लिया है. First team keeper to replace him. पिछली बार थे वो keepers थे second team second string line के लिए तो Mignolet knew कि मेरी position is safe. अब ये एक बहुत बड़ा difference आएगा कि how he handles that pressure. स्क्वाड लिवरपूल की आपके हिसाब से अब कैसी है? अब जो उन्होंने बिल्डअप की है प्लेयर्स जो खरीदे हैं अब जा रहे हैं तो उसके हिसाब से कैसी बनती नजर आ रही है? स्क्वाड के अंदर मुझे डेप्थ दिख रही है जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि लिवरपूल का एक इशू ये भी था कि उनके पास पोजीशंस के अंदर अच्छे प्लेयर्स नहीं थे टू रिप्लेस द वंस दैट केप्ट कमिंग ऑफ. अब एक और मसला आएगा सबसे बड़ा कुटिन्यो का क्या होएगा क्योंकि माने आ गया फर्मिनो भी है लालाना भी है वैनाल्डम आ गया. Coutinho might have to drop into the midfield. That's the best. मुझे तो नजर आ रहा है कि वो शायद लेफ्ट विंग पे खेले मगर हाँ क्लॉप ने exactly ये बोला था कि the Liverpool squad is his and he is pleased with the quality basically.
What he means is that whoever he's already selected to go is aren't the people he wants. सही। तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा जो उसने टीम जिसके साथ वो खेल है, वेदर हेंडरसन है, मिलनर है, दे आर ऑल ओल्ड गार्ड एक तरीके से, ही इज सेटिस्फाइड विद देयर एफर्ट एंड द परफॉर्मेंस, तो वो रखेगा उन्हें। जो इनको जिस तरह बैलेटेली और वो है, उनको ही इज डिसाइडेड बेंटेके, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली he decided that he won't stick with him. अच्छा, तो वो एक साको के बीच में न्यूज आई थी कि वो उसको वापस भेज दिया है और ट्रेन नहीं कर रहा है इन लोग के साथ। हाँ, वो ये डिसिप्लिनरी इशू है जो मुझे लग रहा है, वो वजह यही है, ही स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बेसिकली। जो उसने लास्ट सीजन किया ना, हाफ सीजन, उसने ही हैज फॉरगॉटन अबाउट इट। अब जो प्री सीजन में चल रहा है, उसने सारे प्लेयर्स को, मुझे जो लग रहा है, बोला कि एवरीवनस इक्वल ना, नो वन स्पेशल, नो वन, क्योंकि दिस इज अ टाइम ऐसा है कि व्हेन दे कैन एक्चुअली किक समवन आउट एज वेल, मतलब इवन इफ दे वांट चेंज कर सकते हैं, हाँ, मतलब हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू इट। तो वो बेसिकली डिसिप्लिन वाइज ही हैड टू मेक श्योर कि थ्रू आउट द स्क्वाड ऐसा हो कि जितना भी बड़ा प्लेयर हो साको की तरह, ही स्टिल इज नॉट अबव। तभी वो रूमर्स फिर आ रहे हैं, मगर हाँ, वो सिर्फ रूमर्स ही होंगे। कोचेस तो होते हैं ना, you just, आप जैसे ही बोलोगे कोई अनसेटल्ड है, एक न्यूज आएगी, दूसरी तरफ से न्यूज आएगी कि कोई इंटरेस्टेड है, तो आई थिंक मैं पॉइंट बोलना चाहता, साको लास्ट सीजन जैसे देख रहे थे, ही वाज परफॉर्मिंग रियली वेल, बहुत अच्छा खेल रहा था। अब उसका सर ऐसा लग रहा था, सर उसका चढ़े जा रहा है, द वे ही रिएक्टेड टू थिंग्स, ही इज गेटिंग, मतलब कि नहीं, आई वुड से ऐसा ही था, हमेशा से ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। द रीजन इज कि आपको अगर याद हो कि बहुत पहले जब व्हेन ही स्टार्टेड ब्रेंडन रॉजर्स के एरा में, तो ही वाज उसको बिठा दिया था एक मैच में, जो इन रिस्पांस ही लेफ्ट द स्टेडियम ऑल टुगेदर, he didn't even stay on the bench. नहीं, असल में इसको अर्ली स्टार्टअप मिल चुका है ना, क्योंकि ये पीएसजी का कैप्टन होता था, हाँ, और इसको फ्रांस Even का भी कैप्टन था, तो ये इस तरह से आप देखा जाए तो ये उसके लिए कोई बड़ी, वो उसके ईगो के लिए, वो इतने बड़ी ईगो है उसकी इस तरह से। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, ये मसला ये भी होता है, बट आई थिंक इट विल डाई डाउन, ही वोंट गो एनीवेयर राइट नाउ। आई डोंट थिंक क्लॉप इज लुकिंग टू सेल हिम ईदर। एक और अभी बेशिकताश का लिंक आ रहा था बेलेटेली के साथ, मगर आज वो नजर आया कि वो भी बेशिकताश का लिंक आया था, उसके साथ आया था, एजेक्स के साथ आया था, but he has shot himself in the foot again, yet again, and he's been caught smoking. Photographs आई हैं कुछ, तो most probably that's in doubt as well. But one thing is for sure, Liverpool ने ये decide कर लिया है whether they can, if they can sell him, good, maybe they make about 10 million pounds again. If not, then they'll cancel his contract. Simple as that. वो न्यूसेंस पालना सही नहीं है। Things about cutting your losses is one. हाँ, वो अब देखो ना, मैन सिटी में उसने ड्रेसिंग रूम खराब किया, फिर वो लिवरपूल आया, इधर भी थोड़ा बहुत किया, फिर एसी मिलान चला गया, वहाँ पे भी किया हो। let him destroy some other team now. लिवरपूल का टाइम आराम से पूरा हो गया। इसका सबसे अच्छा मुझे लगा था कि even his manager said last time when he moved to Liverpool ना, कि this is his last chance. इसके बाद इसका और chance Even then कुछ किया नहीं। तो that was enough about Liverpool now. Arsenal news please. यार, आर्सेनल का सबसे जो बड़ी न्यूज़ यही है कि आर्सेनल वेंगर बोल रहे हैं कि उसको एक और फॉरवर्ड साइन करना है, हाँ, जो कि न्यूज़ चल रही है रियाद माहरेज की, और थोड़ी देर बाद उसका सीईओ बोलता है हम compete नहीं कर सकते ट्रांसफर मार्केट के अंदर। तो what are they trying to do? Are they trying to hoodwink their fans? मतलब ये हो सकता है क्योंकि वो मोराटा की जो वेजेस हैं और उसकी जो ट्रांसफर उसका क्या कहते हैं लिंक जो है लिंक आया था, वो उसके लिए तो नहीं है ये, क्योंकि वो कुछ इतना 70 तक शायद मेरे ख्याल में आर्सेनल नहीं बेच रहा, रियाल तो बेचेगा नहीं, रियाल नहीं बेच रहा, उनके ऊपर ट्रांसफर बैन लगने वाला है, वो किसी को नहीं बेच रहे। Morata they brought on yes for sell eventually, but they are not going to sell him. तो फिर और इसके अलावा मारेस के अलावा स्ट्राइकर्स ही देखेंगे ये लोग ज्यादा। न्यूज़ तो आई है कि आर्सेनल जो है स्टिल, आर्सेन वेंगर इज स्टिल लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर, होपफुली दे विल फाइंड दैट स्ट्राइकर इन दिस ट्रांसफर विंडो। 2 साल से तो नहीं मिला उन्हें, पता नहीं क्यों, व्हाई इज इट सो हार्ड, बिकॉज उनके पास ट्रांसफर फंड तो है अच्छा खासा। लास्ट सीजन बोला था कि 220 मिलियन पाउंड होंगे, लेकिन देन स्टिल दे डिडंट बाय एनीवन, सो आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। वैसे थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि 220 पाउंड्स रखे हुए हैं, ऐसा क्लब्स के पास ऐसा नहीं होता रखे होते, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं आप सुआरेज का वो
अभी तक पे हो रहा हाँ। है, तो वो ये नहीं होता कि अभी रखे हैं तो मैंने अभी दे दिए, हाँ। वो No, Over time what that means is they can generate that much बिल्कुल, money through merchandising and through other sponsorship. उनको पूमा का स्पॉन्सरशिप मिली थी जिसकी वजह से उनके पास फंडिंग आया था, अब टीवी राइट्स की फंडिंग मिल रही है इन्हें, तो एवरी टीम हैज गॉट समथिंग. वेस्ट हैम इतना खर्च कर रहा है तो व्हाई आर्सेनल कैन नॉट आर्सेनल कम्पीट. से मुझे हमेशा याद आता है एक क्लोज बट नो सिगार, उनको हमेशा करीब हम खरीद लेंगे, हम खरीदने वाले हैं, मगर बस कभी नहीं खरीदते। स्ट्राइकर के अलावा भी तो वो लोगों को देख रहे हैं, जैसे कि वो उनका विंगर है वेलेंसिया का, विंगर कह रहा हूँ, डिफेंडर है शौकदान मुस्ताफी जी, जर्मन डिफेंडर है, हाँ। पर अगेन क्या हो रहा है उसका गारंटी आ रहा है या नहीं आ रहा। आर्सेनल विंगर है, अगेन आई कुड हैव बॉट हिम वाला हो सकता था, वी वर लुकिंग एट हिम बट ही He बिकेम got away. अ He got away. अच्छा, तो वो वॉलकॉट कह रहे हैं कि भाई अमेरिकन प्रीमियर लीग जो है उनकी बड़ी अच्छी जा रही है और वो EPL के level तक EPL के आ लेवल तक उसका वही I level don't know, उसका maybe क्या I don't know level what the है? view is from the bench, but उसका लेवल वही है। or maybe he's trying to make the bed before going go sleep in हो it. सकता है। So I don't know. हो सकता तो है. आर्सेनल का हाँ बस यही न्यूज़ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैन सिटी। मैन सिटी की क्या न्यूज़ है? मैन सिटी की जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रही है वो ये है कि दे ट्राइंग टू साइन अ डिफेंडर जॉन स्टोन्स एंड दे ट्राइंग टू साइन अ विंगर फॉरवर्ड लीरॉय साने। अलोंग विद दैट एक जो बैक पेजेस में न्यूज़ चल रही है गैब्रियल हेसूस की फ्रॉम पाल्मेरास। तो ये तीन मेन न्यूज़ है मैन सिटी के जो ट्रांसफर विंडो में है। उसके अलावा उसके अलावा वो उसके कुछ अलावा स्टेटमेंट्स हैं। रिफ रैफ बहुत चल रही है. हाँ. वो फ्रैंक रिबेरी ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पेप गार्डियोला ने उसके रिप्लाई में स्टेटमेंट दिए हैं. फ्रैंक रिबेरी सेइंग दैट ही इज अ यंग कोच और कभी-कभी ज़्यादा बोल जाता है. बट आई डाउट इट बिकॉज कि उसने खेला भी बहुत है पेप गार्डियोला ने, फिर उसके बाद बारसा भी मैनेज की है, फिर ये बायर्न आया है. अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि एक कॉन्सेप्ट चला था, उसने भी बहुत बोला था कि एक टीम में मोल है उसकी. बायर्न म्यूनिख में जब रहा है वो, जो कि लीक करता रहा है चीजें. स्क्वाड वगैरह। हाँ, तो बहुत ये कंसिडरेशन थी कि शायद वो रिबेरी ही है, क्योंकि बहुत अरसे वो इंजर रहा है. उसकी वजह से वो कोस्टा को खिलाता रहा है ऊपर. बिल्कुल। तो यही सुनने में ये आया था कि जब वो इंजरी से वापस आएगा तो देयर विल बी हेल्प टू पे टाइप ऑफ एक स्टेटमेंट भी आया था. तो हो सकता है यही हो, उसकी जो उसके साथ रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं. ये एक और न्यूज़ आई थी कि इनके कुछ प्लेयर्स अलग से ट्रेन कर रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, वो ये है कि पेप गार्डियोला बीइंग पेप गार्डियोला वो जिस लेवल का प्लेयर है, और उसने बारसा में भी ये बहुत दिखाया है और बायर्न में भी दिखाया है कि ही बिलीव्स इन फिटनेस, टोटल फिटनेस ऑफ द फुटबॉलर. तो ऑब्वियसली मैन सिटी के कुछ प्लेयर्स थे वो ओवरवेट थे, दे weren't that involved लास्ट सीजन. तो वो जैसे बेंच वार्मर उनका। हाँ, नाजरी टू बी हाईलाइटेड. हाँ, ये है क्योंकि उसी की न्यूज आई है कि उसको सबसे बड़ा बंदा है जिसके मतलब प्लेयर है जिसको उसने बेंच कर दिया इस सेंस पे कि ओवरवेट है, तो जब वेट लूज करेगा तो सही है। बस यही है मेरे ख्याल में मैन सिटी। मूविंग ऑन टू लेस्टर, उनकी न्यूज़ थोड़ी सी इलैबोरेट कर दें। लेस्टर का सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से मारेस की कहानी चल रही है अभी, द लिंक विद आर्सेनल, जो कि आ भी रहा है नहीं भी आ रहा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा. लेकिन ये है कि लेस्टर इज प्रोबब्ली गोना ऑफर हिम 100K अ वीक कॉन्ट्रैक्ट. तो सुनने में ये आ रहा है कि ही विल टेक इट एंड स्टे एट लेस्टर. दैट विल ऑब्वियसली डैश अ लॉट ऑफ होप्स फॉर आर्सेनल, आर्सेन वेंगर, जिसको फैंस जो है अमेरिका में भी नहीं छोड़ रहे और वेनिस बीच पे भी पकड़ के उसको बोलेंगे मारे तो खरीद लो, मारे तो खरीद लो. आई डोंट थिंक ही विल बी मूविंग. तो आप लोग ले रहे हैं चैंपियंस लीग की टिकट्स लेस्टर की 35 पाउंड्स? हाँ, 35 पाउंड. हमने अपने सारे रिश्तेदारों को और जो है दोस्तों को बोल दिया कि दिस इज द ओनली चांस दे विल एवर हैव टू एक्चुअली विटनेस अ चैंपियंस लीग गेम इफ दे गो टू वॉच अ लेस्टर गेम. एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लेस्टर के बारे में, रेनियरी केम आउट एंड सेड कि हमारी ना ट्रांसफर डीलिंग्स हो गई सारी. अच्छा. 90% ट्रांसफर डीलिंग हो गई, 10% चांस है जो होने का थोड़ा बहुत एंड में, मगर अब मैक्सिमम हो गया. सही. और साथ में एक और चीज़ जो है, इनका जो मिडफील्डर है एंडी किंग,
he signed a new contract till 2020. उनका वो फुलबैक ने भी कर लिया जो जो यूथफुल बैक है बेन चिलवेल, लिवरपूल का जो टारगेट था। वो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन उसने एक्सटेंशन कर लिया है 5 इयर्स का. अब एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम जो अभी लिवरपूल की तरफ भी आया है, और उसने क्लब जो है अब इज गोना यूज मिलनर एज अ यूटिलिटी प्लेयर अगेन हाँ होपफुली. बेचारा वो मैन सिटी से आया इधर ताकि उसको मिडफील्ड में खेलने वाले. वैसे ही बुढ़ा हो गया है, बुढ़ाऊ को जो है ना मेरे ख्याल से ही डज वांट टू अर्न मनी नाउ. हाँ ही इज गोना प्रोबब्ली रिटायर फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल. हाँ वो चला जाए किसी भी लीग में. तो लेस्टर के बाद हम लोग इसको एंड करते हैं अब. देखें, आई थिंक दैट्स इट फॉर लेस्टर. हम्म. लेट्स मूव ऑन टू अदर न्यूज़. अदर न्यूज़ में अब बाकी